AMP has been registered in India, USA, UK, and Australia as a non-profit organization, and it has completed 12 years in serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP's vision is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. And the AMP's vision lies in advancing education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. AMP also has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. The next slide, please. These are the achievements of AMP. AMP has, contributed in school development programs, of which career counseling, which the program that we have is a new thing. We have wherein we have developed 2,800 plus skill development lectures. We have connected with 800 plus schools, and we have benefited 2,81,000 students have been benefited to this program. After the school development program, it has contributed in the employment assistance cell, wherein 360 plus job fairs and job drives were given. 21,000 candidates were employed through these fairs and drives. Employability trainings were given for 220 plus, and 17,000 plus degree students benefited from this. They also provide scholarship and self-employment opportunities. 800 plus higher education scholarships have been given so far, and 860 plus orphan education have been sponsored, through which 425 plus families transfer met by offering self-employment assistance. Wherein we also have AMP Resource Center, where you get access to 660 plus career counselors, 2,500 plus students were counseled, and 50 documents on career guidance is accessible. The awards and partnerships were 380 plus renowned educationists connected and were awarded, and 50 plus partners for skill training and job fairs were given. The new digital initiatives by AMP, which were taken by this year, they have launched indiazakat.com, the indianmentors.com, and the amppowerjobs.com. Indiazakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform floated by the AMP with a view to bring the Zakat seekers and the Zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operation purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the needy and the distressed people. The IndiaMentors.com strives for the development of vibrant and progressive student and young professional community in India. The IndiaMentor.com envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. amppowerjobs.com is a job portal free for job seekers with comprehensive, including skill training and employability training programs. AMP Power Jobs has been specially created by industry professionals for the sake of freshers and those affected by the COVID-19 pandemic. AMP has a wide reach with an on-ground presence of 140 plus active chapters, which are spread across 26 states and 16 countries with 6,000 plus active members. We also have an online presence of 1,25,000 plus members and professionals connected to various social medias like Insta, Facebook, WhatsApp, and LinkedIn. To join AMP, visit www.ampindia.org/joinamp, wherein you will have all the details.
So today's topic is career in engineering, and our speaker for the day is Professor Awab Faki. He is an educator, edupreneur, patent analyst, and a researcher. To date, he has filed many patents in India as well as abroad. He is an advisory council member in the IPR cell of Maulana Azad University, Jodhpur. He has been awarded as a best startup idea by the government of Maharashtra. Apart from that, he has 23 international and national awards to his credit. He has also published 21 research papers so far. He has played various roles in international conferences at Singapore, Philippines, Malaysia, Beijing, Taiwan, and India. He is currently member of 18 international professional organizations. He is also a gold medalist in PhD and has delivered many webinars on IPR and Indian patent during lockdown, through which he has empowered more than 8,000 plus faculties. He has been a student-oriented faculty throughout his professional career. Till date, under his guidance, 21 awards has been won by his project students in the last 10 years of AIKTC. A warm welcome to you, sir, on the behalf of the AMP team. We are very honored and grateful to have such eminent personality amongst us. Over to you, Awab, sir. Thank you so much, Jazakallah khair. It could be a very good evening, a very good afternoon to everyone. Assalamu alaikum. हमारा जो कमिंग पूरा हम लोग आपका जो कीमती वक्त आप देने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स मुझे ये हमारा बेसिकली प्लान रहेगा। पहले कि एक जनरलाइज जो ब्रांचेस होती है इंजीनियरिंग की हम उसके बारे में थोड़े बहुत बातें करेंगे। उसके बाद जो मेजर सेगमेंट्स होते हैं क्या क्या टाइप के प्रोफेशनल जॉब्स अवेलेबल के सेगमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो जनरलाइज कैटेगरीज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वो खत्म होने के बाद हमारा नया फोकस रहेगा जो कुछ नए कोर्सेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया या एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो काफी कुछ नए कोर्सेज जो आए हैं उसके बारे में विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट इट कि नए कोर्सेज क्या आए हैं। एंड आफ्टर दैट थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको मैं जस्ट वो खासकर MHCET का महाराष्ट्र के अगर ताल्लुकात से हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में बेसिकली मैं पिछले साल की बात करूंगा। इस साल अगेन कुछ ना कुछ हर साल हल्का हल्का प्रोसेस रिवाइज होता रहता है। तो पिछले साल का जो एडमिशन प्रोसीजर था तो मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा ताकि आपको थोड़ी एक मालूमात रहे। उसके अकॉर्डिंगली आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप थोड़ा रेडी करके रखें। सो ये हमारा कंप्लीटली आज का फ्लो होने वाला है। जैसा बारिश साहब ने कह चुके हैं ऑलरेडी, आपको जो भी क्वेरीज रहेंगे आपके पास Q&A सेशन है, आप वहां पे प्लीज पोस्ट कीजिए। अगर कुछ हो सके अगर उसको मैं बेशक जरूर मैं देखते रहूंगा। जो हो सके मैं अपने प्रेजेंटेशन में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो रेस्ट जो भी रहेंगे वो हमारे मॉडरेटर आपके क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। देन विल बी हैविंग 1-to-1 सेशन उसके हिसाब से एक बार प्रेजेंटेशन होने के बाद। सो ये हमारा एक फ्लो रहेगा। उसमें आपको जब भी जो भी चीज आपको क्वेश्चन रहेगी आप प्लीज यू आर द फ्रीडम आप प्लीज Q&A में पोस्ट कीजिए। मेरी खुशी होगी उसको आंसर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड रियली हैप्पी कि आपने अपना वक्त निकाल के ज्वाइन किया। This will start with the presentation. So firstly कहना है कि भाई इंजीनियरिंग क्यों क्या स्कोप है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपने कहा अब सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर लॉकडाउन की बात करें जो हमने हमारा वक्त देखा है पिछले ऑलमोस्ट 14 to 15 मंथ्स ऑफ टाइम, आप जितनी भी चीज आपने देखी होगी ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी चीज हो रही है सब डिजिटाइज हो रही है। चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, चाहे लोग ऑफिस जाके काम करने वाले हैं या कॉर्पोरेट में जो या किराने की दुकान से आपके घर पे जो डिलीवरी होनी थी, हर सिस्टम बहुत कुछ ऑनलाइन जा रहा है। और ये जो भी चीज जा रही है या आपके बैंक का सिस्टम जो पीछे अपग्रेड हो रहा है एवरीथिंग ये पूरी जो चीज आपकी कायम है आपकी इंजीनियरिंग पे कायम है। अब यहाँ पे ये आता है कि भाई इसमें हमें ब्रांचेस कौन सा चुनना चाहिए। ठीक है, हमें ये तो समझ गया भाई इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है, लोग की हर चीज की जो बुनियाद है पूरी इंजीनियरिंग पे टिकी है। तो इसमें कोर्सेज क्या है, इसमें फिर कुछ इंजीनियर्स को सैलरी क्यों नहीं मिल पाती है, क्यों इंजीनियरिंग पे जॉब्स कुछ बनते हैं या उसके वजह क्या है। जब बच्चा 4 साल अगर मेहनत कर रहा है ये कर रहा है तो उसको कुछ लोग को प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा होगा। तो उसकी कुछ हर एक की अपनी एक वजह होती है। विल बी टेकिंग इट
फर्दर, एक एक थोड़ा बहुत रिव्यू देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें, अगर आपके बच्चा हो या आपके कजन्स हो या किसी के लिए भी आप सोच रहे हैं, बेसिकली अगर उनमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की अगर एबिलिटी हो, या कुछ चीज भाई यहाँ पे है, ये प्रॉब्लम है, अगर पहचानने की भी एबिलिटी हो, यकीन मानिए उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। बिकॉज इसमें सक्सेस रेशो देखे कैसा बनता है। जब भी हम लोग इंजीनियरिंग अगर करने के बाद भी जो अगर हम लोग जॉब पे आते भी हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कोई भी कंपनी हो, हमने देखा होगा कि पिछले 30 इयर्स 40 इयर्स का अगर देखा होगा, हमें टेक्नोलॉजी को अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो हर साल क्या हो रहा है, पिछले साल तक ऐसा था 2010 तक का, कि एक डिकेड मतलब 10 साल होने के बाद वो टेक्नोलॉजी क्या हो रही थी, कोलैप्स हो रही थी कि 10 साल हो गया तो खत्म, तो बट ऑब्वियस कुछ नहीं आ रही है, उसकी वो जगह ले रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब लोग आज फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो इससे पहले ऑर्कुट था, तो लोगों ने इसको ना पसंद करके इसको पसंद किया, एंड देन सो ऑन स्टडी, लोग इंस्टाग्राम पे भी आ गया नया प्लेटफॉर्म, एंड उसको भी काफी पसंद करते हैं। एंड अभी रिसेंटली हम लोग बात करें ट्विटर। सो हर टेक्नोलॉजी की एक लाइफ स्पैन होती है। सो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि 10 साल में हो, कुछ टेक्नोलॉजी होती है 8 साल में हो। आज की तारीख में जो हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स हो गया है कुछ टेक्नोलॉजी लेवल पे। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर इंजीनियर वो जॉब करे, तो उसको बहुत क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। वो जमाना चले गया कि हम लोग गए गए रोज और वही काम करके वापस आ रहे हैं, ये एटीट्यूड पूरा खत्म हो गया है। हमें बहुत चैलेंजिंग होना पड़ेगा और बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर हम वो जो दी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ा हर्डल आता है। तो ये सब चीजों में वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये सब चीजों का प्लीज ध्यान दीजिए। अभी इसके लिए आप कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा अगर 9th में है, आप बताइए हमें तो इसको इंजीनियर बनाना है या उसकी चॉइस है इंजीनियर बनाना, तो उसको हम लोग कैसे तैयारी करें? तो अगर इंजीनियरिंग आपका प्लान अगर तय है, तो सबसे बेहतर तरीका यह है, सबसे बेहतर बेहतर वे ये है, आप डिप्लोमा करके डिग्री करिए। बिकॉज फायदा ये होता है, आप डिप्लोमा में कुछ जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके लिटिल एडवांस सब्जेक्ट आपको डिग्री में होते हैं। 11th 12th में आपके जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसका कंटिन्यूशन सिवाय मैथ्स का आपको कोई और सब्जेक्ट में मेजर फायदा नहीं होता। तो आपका अगर इंजीनियरिंग तय है, डिप्लोमा से डिग्री जाना बहुत बेहतर ऑप्शन है। मैं आपको दोनों की प्लस और माइनस पॉइंट पुटअप करूंगा। अब सेकंड ये आता है कि अगर आप कहेंगे कि आपका 9th स्टैंडर्ड में अगर बच्चा है, तो उसको हम लोग अगर हमें इसको प्रैक्टिस में पुटअप करना है, या क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं उसको, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बोल सकते हैं, कैसे करें? तो हो सके कुछ भी करके उसके ना कुछ एक्टिविटीज में आप पुश कीजिए। भले लॉकडाउन है, आप कुछ प्रोजेक्ट्स में उसको बनाने लगाइए घर पे। बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स का बनाने का, इसको हम लोग कहते हैं स्टेम एजुकेशन। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये एजुकेशन ही आपके बच्चे को प्रैक्टिकल थिंकिंग का अप्रोच देता है। तो तब जाके था, भले वो इंजीनियरिंग के अलावा कोई और फील्ड में चले जाए, समझे, एंड में उनका डिसीजन चेंज होगा, चलेगा, बट ये जो सोच है वो तो हर जगह काम आएगी। भाई क्रिटिकल सोच, भाई ठीक है ये गलत है, इसको सही कैसा करें, उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे, उसको सही कैसा करें, ये एटीट्यूड हर जगह काम आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके, अगर आपका बच्चा अगर स्टिल ही इज ए 9th, प्लीज उसको ट्राई कीजिए, आप उसको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट्स कराइए। अब ये 10th पास हो चुका है, या 10th उन्होंने अभी ये साल उन्होंने 10th दिया है, तो इन दैट केस अगर आपका इंजीनियरिंग तय है, तो डिप्लोमा टू डिग्री इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर आप ये कहेंगे कि सर वो डिप्लोमा में कैसा हो पाएगा, वो डायरेक्ट सेमेस्टर पैटर्न है, कैसा बच्चा कोप अप कर पाएगा? यही तो एडवांटेज है वहां पर। एडवांटेज ये है कि उनको पहले से हैबिट आ जाती है 6 महीने। बिकॉज जैसे आप 10वीं तक उनके हैबिट क्या है, साल में एक फाइनल एग्जाम होती है, बस खत्म। इंजीनियरिंग में क्या होती है, हर 6 महीने में एक फाइनल एग्जाम आपका होती है। उसको हम लोग सेमेस्टर पैटर्न कहते हैं। जो स्कूल में हम लोग करते हैं उसको हम लोग ईयरली पैटर्न कहा जाता है। ये फर्क होता है। तो बच्चे को 10वीं के बाद से ही हैबिट आ जाती है, भाई 3 साल डिप्लोमा 3 साल डिग्री। ये पूरा हमको डिप्लोमा में हैबिट इतनी होती है कि डिग्री में हमको डिफिकल्टी नहीं आती। डिफिकल्टी अंकल आएगी तो हमको एक ही सब्जेक्ट में आएगी, मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स डिप्लोमा थोड़ा कम होता है, डिग्री में ज्यादा होता है। अगर 12 करके बच्चा आता है तो उसको मैथमेटिक्स में तकलीफ नहीं आएगी, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ी तकलीफ आएगी कंपैरेटिवली विद डिप्लोमा स्टूडेंट।
डिप्लोमा स्टूडेंट 11th के बच्चे हैं, बहुत फर्क रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो बेसिक सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा है, जिसके एडवांस सब्जेक्ट डिग्री में है, तो एटलीस्ट बेसिक्स काफी क्लियर होता है। आप कहेंगे कि भाई आप बताइए कि आसान तरीका क्या है, व्हाट इज द इजी वे डूइंग इट। अभी इजी वे डूइंग इट का मैं आपको एडमिशन के ताल्लुकात से कहता हूं। जब हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा टू डिग्री जाने में एडमिशन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कब, जब उनका परसेंटेज लो होता है, बिकॉज उनकी 20% सीट रिजर्व होती है डिप्लोमा से डिग्री आने के लिए, हर ब्रांच में उनकी 12 सीट्स होती है, तो उनका परसेंटेज हाई हो तो उनके चॉइस का कॉलेज मिलना आसान हो जाता है। 12th में क्या होता है, जब 12th पास करके बच्चे जाता है तो उसके पास 60 सीट का ऑप्शन होता है, और डिप्लोमा डिग्री का हर ब्रांच में 12 सीट का ऑप्शन होता है। ये एक मेजर फर्क आ जाता है। अब ये भी हो गया कि इसमें फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा में अगर परसेंटेज कम आ गया तो बच्चे को क्या रुकना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, बिकॉज कैसा होता है 3 साल अगर डिप्लोमा करते हैं तो डिग्री जो 4 साल का होता है, डिप्लोमा करके डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में जाना पड़ता है, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आपके पास 20% सीट रिजर्व होती है, तकरीबन समझ लीजिए 12 सीट होती है हर ब्रांचेस में। आप जो ब्रांच में ट्राई करोगे उसमें 12 सीट रहेगी वो कॉलेज में, तो ऐसा हर कॉलेज में आपके लिए 12 रहेगी, टोटल 12 की बात नहीं कर रहा। तो आप फर्स्ट ईयर से अगर आप जाते हो तो एक ब्रांच में सीट होती है 60, मिनिमम जो होती है 60 होती है। कोई ब्रांच, कोई कॉलेज में डबल इनटेक भी होता है, 120 भी सीट आपको मिल सकती है, तो वहां पे आपको 60 सीट मिलती है फाइट करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो ये एक फर्क होता है। तो एडमिशन इंजीनियरिंग में लेना है तो 12th करके थोड़ा आसानी होती है, बट अगेन वहां पे आपको एमएससीटी की पढ़ाई, एंट्रेंस एग्जाम पढ़नी पड़ती है। अगर आप डिप्लोमा आपने किया तो आपको एक एंट्रेंस की पढ़ाई, आपको उससे आप बच जाते हो, खाली आपको डिप्लोमा के लास्ट में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज उसके दारों मदार पे आपको परसेंटेज के जो एवरेज आएगा उससे आपको डिग्री में एडमिशन। सो एक मेजर चीज होगी आपकी विद दिस। अब ये मेजर ब्रांचेस जो सबने देखा हो, मैंने सिर्फ पर्पसली वही डाला आपको, एक्स्ट्रा मैंने पुटअप नहीं किया प्रेजेंटेशन पे। जो एड ऑन हो गया मैं आपको कहता हूं, ताकि अगर आप बुक पेन लेके अगर बैठ रहे हैं तो आप नोट करेंगे तो मैं बड़ी मेहरबानी होगी। जो मेजर, जो कॉमन ब्रांचेस है मैं आपको इसके सामने आपको पुटअप कर, जो हमारे काफी, जो कि बंद ना होने वाले ब्रांचेस, ये पूरी बेस है। आप कोई भी कंट्री में जाइए आपको सबके मास्टर्स मिलेंगे 10 साल बाद भी मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पूरा कोर ब्रांचेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भाई जो भी नया होगा वो इससे डिराइव किया होता है ब्रांच। सिविल हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी एक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। अगर आप देखते हैं नॉर्मली, आप यूएस में देखिए, कनाडा में देखिए, या एनी अदर कंट्री, जर्मनी में देखिए, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बहुत अहमियत मिलती है, बिकॉज ये कोर ब्रांच है, इसमें से ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, इसमें से ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आ रहा है। ये वन ऑफ द लेग्स हो गए आपके इलेक्ट्रिकल। सिविल आपका एक कोर ब्रांच है, मैकेनिकल आपका एक कोर ब्रांच है। अभी आप देखते होंगे कुछ कॉलेजेस में, अगर आपको, आप चाहे डिग्री में एडमिशन ले चाहे डिप्लोमा में एडमिशन ले, आपने देखा होगा कुछ ब्रांचेस में आपका आईटी भी है। सो कुछ वहां पे कंफ्यूजन आता है कि भाई आईटी ले या कंप्यूटर्स ले, ऑलमोस्ट इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। आप पूरा अगर सिलेबस कंपेयर करें, ऑलमोस्ट इट इज सेम, 70 to 80% आपका पूरा आपको सेम मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि भाई मैं आईटी लूं या कंप्यूटर, कोई भी लीजिए दोनों में से, आपको जॉब पर्सपेक्टिव, आपको जॉब जहां पे करना है वहां पे आप आईटी करें कंप्यूटर के लिए, आपको ओपनिंग दोनों के लिए मिलने वाली, कंप्यूटर/आईटी रिक्वायरमेंट होती है। किधर भी जॉब में ऐसा नहीं होगा आपको बोला जाएगा कि नहीं आईटी नहीं किया मत आइए, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आप आईटी कीजिए चाहे कंप्यूटर कीजिए, वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। सो ये हो गया आपका पूरा जनरलाइज ब्रांचेस हो गए जो हमने सभी लोग ने देखा है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो नए एड ऑन ब्रांचेस हो गए इसके बारे में हम लोग थोड़ी आगे बात करके फिर हम लोग उसको रीस्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे जनरलाइज वर्क प्रोफाइल होते हैं, भाई काम करने के अलग अलग सेगमेंट्स क्या मिलते हैं हमें, अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग का हो, जनरलाइज हमें कौन सी कैटेगरी मिलती है हमें, हम लोग वो देखते हैं। वन इज आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मत कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्कोप नहीं है। अगर हम लोग कोई भी सर्किट्स की बात करें, या कोई भी डिवाइस की बात करें, या ओनिडा की बात करें, या फिलिप्स की बात करें, या एमआई की बात करें, या जो एप्पल की बात करें, ये एनी ब्रांड,
जो डिवाइस की बात करें, जो डिवाइस मैन्युफैक्चर करता है, हर डिवाइस में अपनी एक सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे आपकी हार्डवेयर की टीम बैठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है कि ये चिप को कैसा और छोटा करे, मिनिमाइज करे और कितना बेहतर से बेहतर एफिशिएंट बनाया जाए। सो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है ये गलत। आप ये कह सकते हैं कि यस, ये स्टेट में, ये एरिया में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब कम है, बट इसका डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट R&D डिपार्टमेंट में अगर कोई स्टूडेंट को मौका मिलता है, ट्रस्ट मी कि वो बहुत अच्छा हाई पेइंग कैपेसिटी जॉब होता है, बेहतर होता है। नेक्स्ट इज आपका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ जो स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिनको थोड़ा टेक्निकली पसंद है और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पसंद है। कुछ ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि वो इंजीनियरिंग करते प्लस MBA करते हैं, कॉम्बिनेशन अपना टेक्निकल प्लस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों कैटेगरी के आपके प्लानिंग मैनेजमेंट और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ पे वो कैटेगरी में फिट होता है बच्चे, जिसको टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी मालूमात है और जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की भी मालूमात बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, समझो बेहतरीन से बेहतरीन जो कोरियर सर्विस है, DTDC जो कंपनी होती है, कोरियर सर्विस कंपनी होती है, अगेन वहां पे भी जो लॉजिस्टिक को हम लोग कहते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो कहते हैं, वहां पे भी काफी आपके इंजीनियर प्लस MBA को रखा जाता है, ताकि मैनेज करने के लिए भाई कितने पार्सल आए, कैसे आए, क्या आए, तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसा बनाए, कम टाइम में ज्यादा को हम लोग कैसे पार्सल को सेंड कर सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब चीजों में भी वहां पे काफी फोकस होता है। नॉट कि यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉनिक्स या कोडिंग यही नहीं है, देयर आर बहुत सारे ब्रांचेस में हम लोग उसको ले सकते हैं। बिकॉज एक वाहिद ऐसा है इसमें, आप ये ध्यान रखिए, आप ये मत सोच के करिए इंजीनियरिंग की भाई ठीक है हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करना है, हमें कोडिंग ही करना है। बिकॉज 4 साल बाद क्या सिचुएशन आती है, हमें उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। आप बताइए ना, किसने सोचा था कि भाई स्कूल का फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड भी ऑनलाइन क्लास लेक्चर होगा? नहीं सोचे थे, राइट? बट स्टिल हो रहा है, बिकॉज सिचुएशन प्रेडिक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो उसमें हमें रिजिड होके नहीं चलता। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन ओपन रखिए कि जो उस वक्त मार्केट में चलेगा, मैं 3 साल बाद आई बी इंजीनियर, मैं 4 साल बाद इंजीनियर बनूंगा, जो उस वक्त मार्केट में रहेगा, मुझे अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि जो मार्केट में चल रहा है मैं इसको स्किल सेट सीख के मेरे में काम करने की काबिलियत बेहतर से बेहतर है। बिकॉज टेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो वक्त के से बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो उसमें हमें रिजिड नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग आपकी एक सीखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। बिकॉज आप एक साल में अगर आप 40 to 45 सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो बट ऑब्वियस आपकी सीखने की काबिलियत काफी बढ़ने वाली है। जो आपकी 11th-12th में थी, आपकी इंजीनियरिंग के बाद में बहुत फर्क है। तो जो लेवल ऑफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके इंजीनियरिंग में, जो लेवल ऑफ कंसेप्ट जो होते हैं, जो लेवल आपको वर्क होता है, वो आपको उतना काबिलियत, उतना, ताकि वो चाहे वो वर्कलोड हो, चाहे बहुत सारी नई चीजें हो, वो सीखने की कैपेसिटी आपको सिखा देता है। कंपैरेटिवली आप दूसरे अगर कोई ग्रेजुएशन के कोर्स देखेंगे तो जो है 3 साल के। नेक्स्ट वन ऑफ द कैटेगरी इज एनालिसिस एंड डिजाइन। अब ये डिजाइन आप कहेंगे कि ये डिजाइन किसमें की बात कर रहे हैं, ये डिजाइनिंग हम लोग खाली कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? नहीं। ये डिजाइन हम लोग हार्डवेयर की बात कर रहे हैं? नहीं, खाली उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यस, वो तो आता ही आता है, कंप्यूटर डिजाइनिंग आएगी, वेबसाइट डिजाइनिंग तो आता ही आता है, डिजाइनिंग सब चीज में आएगी आपकी। आप मैकेनिकल ब्रांच की बात कीजिए तो मैकेनिकल के जो डिवाइसेस होते हैं आपके, उसकी डिजाइनिंग। आप सिविल स्ट्रक्चर की बात करें, सिविल में आपकी जो डिजाइनिंग है उसकी डिजाइनिंग होगी। तो आप हर ब्रांच की बात करें, एवरी ब्रांच में आपका एनालिसिस डिजाइनिंग। आप शॉक करेंगे, आपको लगता है एक जमाना था कि भाई लोग कहते कि नहीं भाई सिविल में और मैकेनिकल में गर्ल्स को नहीं पुटअप करे, बट स्टिल आज देयर आर गर्ल्स जो एक्सेप्ट करते भाई ठीक है हमें सिविल करना है, मैकेनिकल करना है। अब सिविल मैकेनिकल खाली साइट पे नहीं रहा, वो ऑफिस जॉब भी काफी कुछ आ गया है। वो अभी साइट पे जाके ही भाई ठीक है नहीं हमारा बच्चा ये करेगा, हमारी बच्ची वो करेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऑफिस में बैठ के भी आप पूरा डिजाइनिंग है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो हर चीज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनको इंटरेस्ट कितना हद तक है इंटरेस्ट। नेक्स्ट अगेन आपका आता है टेस्टिंग। आप कहेंगे भाई टेस्टिंग किस चीज की? आप टेस्टिंग आपके सिविल के इक्विपमेंट की टेस्टिंग लीजिए, मैकेनिकल की टेस्टिंग लीजिए, आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करिए, आप हार्डवेयर की टेस्टिंग की बात कीजिए, एनी फील्ड। कि भाई कोई प्रोडक्ट अगर बन के आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब से, तो एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है।
ताकि क्लाइंट के पास जाने, कोई लोग इस्तेमाल करने से पहले उसको टेस्टिंग किया जाए इन अलग अलग वे में, चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो। सो अगेन ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। एक हो गया आपका कंसल्टेंसी, कि कुछ बच्चे को ऐसा है कि नहीं, उन्होंने देखा है, उन्होंने अपने वालिद साहब को देखा होगा, या उन्होंने अपने कोई कजन्स को देखा होगा, नहीं हमें भी अपना खुद का कुछ बिजनेस पुटअप करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर एक को लोग को लगता है कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें सामान ला के सामान नहीं बेचना है, बट हमें हमारा जो नॉलेज है, हमने जो सीखा है 4 साल उसको, या हम लोग बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारी नॉलेज है, हमें वो शेयर करनी है, हमें वो सेल करना है। तो एक हो गया आपकी कंसल्टेंसी हो गई, ताकि आप अपनी अपनी कंपनीज को आप अपनी नॉलेज शेयर करो, या कंपनीज को आप हेल्प करोगे कोई प्रोडक्ट बनाने में, चाहे वो सिविल की बात हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। एंड नेक्स्ट आपका आता है एकेडमिया। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु विश टू, यस भैया आई वांट टू डू, मैं ग्रेजुएशन करूं, मैं मास्टर्स करूं, मैं पीएचडी करूं, और मैं एजुकेशन में कुछ काम करना चाहता हूं, कि मुझे पढ़ाना सीखना बहुत पसंद है। मैं पढ़ाना सीखना इसलिए बोल रहा बिकॉज अगर पढ़ाना है तो सीखना जरूरी है, ये दोनों बहुत साथ में चलता है, खाली पढ़ा के नहीं चलता है, पढ़ाना सीखना है बहुत जरूरी है अगर एकेडमिक्स हमें लेना है तो। सो ये होगी आपकी जनरलाइज कैटेगरी, जिसमें कहाँ बच्चे लोग का बेसिकली एक बहुत स्कोप हमें दिखता है। ये बहुत लोग की ये आप फेसबुक पे देखते होंगे, या इंस्टाग्राम में देखा, या किसी की अल्फा सुन लिया, भाई ये ब्रांच अच्छा नहीं चल रहा है, या ये ब्रांच का स्कोप नहीं है। अब यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ दारोमदार आता है दो चीज पे, एक कि आप कौन सी कॉलेज में डाल रहे हैं, सेकंड आपका बच्चे का फोकस कितना है। कॉलेज इसलिए मैंने कहा बिकॉज वहां का माहौल, एटमॉस्फेयर, हम लोग कहते हैं ना हमारा बच्चा नीचे खेलने आता है, कि कौन से लोग बच्चे का क्रिकेट खेल रहा है, या हमारी बच्चियां बाहर जा रही, किसके साथ बाहर जा रही है, भाई किसकी उनकी सहेली कैसी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो माहौल बहुत जरूरी है। अगर वहां पे हमें कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिला तो बच्चा भी बिगड़ जाता है। और सेकेंड उसका फोकस कितना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप इलेक्ट्रॉनिक्स में मत डालिए, आप खाली आईटी में डालिए, कंप्यूटर में डालिए। तो लोग बेचारे माँ बाप जिसकी कैपेसिटी नहीं भी है, फिर भी वो डोनेशन भर के या कुछ करके आगे आगे वो बढ़ के आता है, बिकॉज उन्होंने सुना है ये बात। ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स करके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करके भी बच्चे लोग टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने आईटी कंप्यूटर्स के बच्चों को भी बीट किया है। इट इज कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारे स्टूडेंट के। आज की तारीख में जो भी सिलेबस बना है, सिलेबस के अलावा बच्चों को अलग से मेहनत करनी ही पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो। बिकॉज सिलेबस इमीडिएटली चेंज करना हर एक यूनिवर्सिटी के लिए भी एक लिमिट होती है। आप कहेंगे भाई नहीं है तो सिलेबस पढ़ के ही हमें सब कुछ मिल जाए, नहीं, सिलेबस पढ़ के भी हमें उसके एक एड ऑन कोर्सेज करने पड़ेंगे। अब एड ऑन कोर्सेज करने के लिए कोई बाहर आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं। इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जो कुछ बच्चों ने इतना बेहतरीन से वक्त इस्तेमाल किया है अपने लॉकडाउन का, ताकि उन्होंने अपनी जो स्किल सेट नहीं थी उन्होंने बैठ के सीख भी लिया है, उन्हें वक्त बर्बाद नहीं किया। चाहे एडीएक्स हो गया प्लेटफॉर्म हो गया, लिंक्डइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, देयर आर वेरियस, गूगल के अपने खुद के कोर्सेस होते हैं। सो एक हो गया कॉलेज का जो हम लोग डिग्री के लिए जो हम लोग पढ़ाई करें, उसके अलावा जो एक एड ऑन कोर्सेस है ये बहुत जरूरी है। और कॉलेज का माहौल इसलिए बिकॉज कैसा है, कॉलेज के जब बच्चे अगर अच्छे हो, फैकल्टीज अच्छी हो, तो वो भी प्रमोट करते हैं, ये देखो ये कोर्स आ गया है, ये देखिए ये कोर्सेस हैं आपके, इसने ये कोर्स किया, यहाँ पे भी अच्छा है, ये हमारे एल्यूमिना जो पास आउट हो गए उन्होंने रेफर किया ये कोर्स भी करने के लिए। तो ये अगर एटमोस्फेयर अच्छा हो तो आपको भी, बच्चे को भी इनपुट मिलता रहता है। सो कॉलेज का कोर्स प्लस एड ऑन कोर्स ये बहुत जरूरी है अगर मार्केट में हमें एक अच्छा प्रोफाइल का जॉब अगर लैंड करना है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगेन हम लोग ने थोड़ा उसको और डेप्थ में पुटअप किया कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन के कैसा क्या क्या टाइप के वर्क प्रोफाइल होते हैं, क्या क्या आपको काम करना है। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए जस्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ओनली फॉर योर रेफरेंस, कि कैसे टाइप का वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो सिविल में काम कर रहे हैं, वन ऑफ द सिविल सेगमेंट है, कुछ मैकेनिकल इंडस्ट्री में दे आर वर्किंग फॉर इट। सो प्रोडक्शन, मैकेनिकल, एग्जीक्यूशन, जहाँ पे आपके बेसिकली मैकेनिकल के बच्चे काफी इनपुट आता है, मैकेनिकल, सिविल
यहाँ पे आते हैं। आगे यहाँ पे अलग हर एक कंपनी का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बच्चे आपके इनपुट होते हैं। सो आप कोई भी अगर इंडस्ट्री आप पुटअप कीजिए, अगर इफ द कंपनी इज ह्यूज, वहां पे हर टाइप के आपके स्टूडेंट्स फिट हो जाता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल, चाहे वो आईटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। बट पॉइंट इज दैट कि अगर कंपनी अच्छी होगी तो वही बच्चा सरवाइव कर पाएगा जो मेहनत करे और जो फिट है। दैट्स इट। तो उसमें आप माइंड अपना पूरा ब्रॉडर रखिए, बिकॉज कैसा होता है, एक वक्त ऐसा था कि 2010 का ऐसा था कि वक्त यहाँ पे सिविल में एडमिशन मिलना बहुत तकलीफ थी, इट वॉज वेरी हार्ड। अब ऐसा वक्त आ गया कि भाई अभी कंप्यूटर में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक वेव आती है, तो हमें वेव के साथ नहीं चले, हमें बच्चे के इंटरेस्ट के साथ चले। बिकॉज इररेस्पेक्टिव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इररेस्पेक्टिव हम कोई भी ब्रांच करे, अगर बच्चे ने वो चीज पे अगर तवज्जो दिया है, अब यकीन मानिए कि विल लैंड फॉर अ वेरी गुड जॉब। दो चीज हमें ध्यान रखनी है, एक तो उनका फोकस है कि नहीं पढ़ाई पे, और एक उनका माहौल क्या है कॉलेज में, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगेन वो टेस्टिंग की हमने जिक्र किया था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो, चाहे मोबाइल टेस्टिंग हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम लोग देखते हैं कि भाई या अलग अलग ब्रांड के, हम लोग फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की बात करें तो अलग अलग ब्रांड के अलग मोबाइल की बात करें, कोई मोबाइल की लाइफ 1 साल होती है, कोई मोबाइल की लाइफ 3 साल होती है, तो हर एक की अपनी टेस्टिंग की कितनी वेज होती है, वो क्लिक होता है। अगेन आपके एनालिसिस एंड डिजाइन, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड की भाई इररिस्पेक्टिव, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर आईटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सर्किट डिजाइनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने हमारे रिमोट में देखा हमेशा बचपन चिप्स निकलती हुई, पीसीबी उसको हम लोग कहते हैं, उसके डिजाइनिंग हो। सो हर ब्रांच में आपको ये कंसेप्ट ऑफ डिजाइनिंग एनालिसिस आपको आना ही आना है। अगेन आपका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें आपका एक, इसमें आपको आपको पता है कि एक कंपनी टेक्निकल है, बट उसका आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए। तो आपको मैंने कहा कि जो इंजीनियरिंग प्लस एमबीए के जो स्टूडेंट्स है वो काफी यहाँ पे फिट होते हैं। आप कहोगे कि एमबीए करना जरूरी है क्या? कुछ कुछ कंपनी प्रेफर करती है ऐसे टाइप के प्रोफाइल पे, बिकॉज इनके पैकेजेस काफी डिसेंट होते हैं। कुछ कंपनी डोंट प्रेफर, उनको लगता है कि बच्चे में अगर टैलेंट है, इट इज वेल एंड गुड, दे अप्रिशिएट, बिकॉज कॉर्पोरेट को मतलब है काम से डिजायर्ड आउटपुट से, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो बहुत जरूरी है उनके लिए। नेक्स्ट हमने जिक्र किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नया नया क्रिएटिविटी, बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एवरी डैम टेक्नोलॉजी, जो कि हर 3 से 4 साल में हमें अपग्रेडेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा हर चीज पे। तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काफी कम बच्चे को ये बात के बारे में तवज्जो है, बट जस्ट मैं ये इस पर काफी फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज अगर उनको रियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्रिएटिव थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में काफी फोकस है, तो ये काफी बेहतर डोमेन है। स्टूडेंट जो नॉर्मल पे पैकेज आता है और यहाँ पे डिपार्टमेंट में पे पैकेज में काफी काफी फर्क है। चैलेंजेस भी उतने ही हैं बट ऑब्वियस, बट इसमें स्कोप काफी हद तक बहुत बेहतर स्कोप है। अगेन एकेडमी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कुछ बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ बच्चे को हमको लगता है कि हमें नहीं, हमें एकेडमिक्स में ही ध्यान है, हमें उसमें ही हमें एंटर करना है, उन्हें अपने माँ बाप को देखा है टीचिंग इंडस्ट्री में, या उन्हें कोई इंस्पायर करता है, तो अगर आपका अगर ऐसा है तो प्रेफरेबली आप ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों हो जाए। अगर तीनों करना है तो उसके इंस्टीट्यूशन के फिर आपको शॉर्टलिस्ट बहुत, आपको ऑप्शंस कम बचेंगे आपके पास, जिसके पास ग्रेजुएशन भी हो, मास्टर्स भी हो और पीएचडी भी हो। मैं आपकी जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे या कुछ माँ बाप यहाँ पे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि भाई हम पीएचडी भी हमारे बच्चों को कराएं। सो एक नया कंसेप्ट भी पीएचडी है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसमें ऐसा है कि बच्चे ने अगर ग्रेजुएशन किया तो मास्टर्स और पीएचडी कंबाइन, जैसा मास्टर्स अगर 2 साल का होता है, पीएचडी मिनिमम 3 साल का होता है, हमने फुल टाइम में तो 5 साल का कोर्स होता है मिनिमम, राइट। तो ग्रेजुएशन करने का इंटीग्रेट पीएचडी है जिसमें जो 2 + 3 years का था वो डायरेक्टली 4 years हो गया, एमटेक प्लस पीएचडी 4 years में। सो ऐसा भी है। तो ये भी सब काफी काफी चीजें आई हैं एजुकेशन में, काफी कुछ चेंजेस आए हैं जो काफी बेहतर है बच्चों के लिए। अगर वो बराबर हमने सही डिसीजन लिया मालूमात के साथ, काफी फ्रूटफुल रहेंगे। अगेन कंसल्टेंसी,
हमने कहा ऑलरेडी कि anyone who is having an entrepreneur journey, people who are thinking, स्टूडेंट को जिसको लगता है यस मैं अपना खुद का कुछ पुटअप करूं, मैं खुद का कुछ फर्म क्रिएट करूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या हमारे कुछ घर पे फर्म है उसको हम लोग और एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ाए, तो कंसल्टेंसी इज वन ऑफ द फॉर्म। बट ऑब्वियस बहुत जरूरी है कि जो भी हम चीज की कंसल्टेंसी दे रहे हैं उसके बारे में हमें एक्सपीरियंस हो। यूजुअली व्हाट स्टूडेंट डज कि वो थोड़ा पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर लेते हैं 5 से 7 साल, 5 से 8 साल, ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस पहले ले लें। बिकॉज आप किधर से मार्केट में क्या हो रहा है उसके जाने बिना अगर आप कंसल्टेंसी दे, तो हो सकता है कि लोगों को आपकी ओपिनियन पसंद नहीं है, बिकॉज उनको जो रिक्वायर्ड है वो आप नहीं दे पाओगे, बिकॉज आप उनको समझ नहीं पाओगे। हम किसी को समझ तभी पाएंगे जब साथ में मिलकर काम करें या मार्केट में देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो डायरेक्ट चालू करना भी थोड़ा रिस्की है। इट इज ऑलवेज बेटर अगर आपके पास घर में ऑलरेडी फर्म है, आपको मालूमात आज मिल रही है आपके बड़ों से, तो अलग बात है। अगर नहीं तो बेहतर है कि आप इंडस्ट्री में थोड़ा काम कीजिए, बेहतर से बेहतर कंपनी में काम कीजिए, देन यू गेट फर्क। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी आते हैं कि आफ्टर इंजीनियरिंग कि भाई हम लोग क्या करें, कि हम स्टार्टअप्स में काम करें या बड़ी कंपनी में प्रेफर करें, अगर हमें 2 ऑफर मिल रहा है तो हमेशा ऑलवेज बेटर है कि आप स्टार्टअप में काम करें, बिकॉज वहां पे आपको बहुत छोटी कंपनी है, लोग कम है, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो आपको कम वक्त में ज्यादा सीखने मिल जाता है। ताकि फिर आप बड़ी कंपनी में जब जाते तो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ नॉलेज बहुत अलग डायरेक्शन में जाती है। So that's a small journey about it. कुछ मैं कह रहा था कि कुछ एड-ऑन ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करने की सोच रहे थे। फ्यू ऑफ द ब्रांचेस जो मुंबई यूनिवर्सिटी में भी आ गए और बाकी काफी यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया इस साल। काफी कॉलेजेस ने अप्लाई भी किया है, लास्ट से कुछ कॉलेजेस को मिल भी गया था, मुंबई, नवी मुंबई की अगर मैं बात करूं, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी काफी लोग ने अप्लाई किया है। इररिस्पेक्टिव व्हिचएवर स्टेट आप बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई की बात करें, काफी लोगों ने अप्लाई किया। एआईसीटी एक गवर्निंग बॉडी है जहाँ पे हर कॉलेज को एक अप्रूवल मिलता है कोर्सेज के लिए। तो कुछ कोर्स की बात करूं जो काफी बूमिंग पर है, एक है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्लीज। वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं एआई। सेकेंड है मशीन लर्निंग। मैं इसके बारे में थोड़ा डेप्थ बोलना नहीं चाहूंगा, फिर वो पूरा हमारा प्रेजेंटेशन का डायरेक्शन इस अलग तरह पे चले जाएगा। बट स्टिल आपको कुछ भी अगर क्वेरी रहेगी तो आप एएमपी की टीम से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मेल आईडी भी ले सकते हैं, और प्लस एएमपी में इनके एक्सपर्ट्स भी है हमारे पास, हर डोमेन के अलग अलग एक्सपर्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एविएशन के बारे में जरा मालूमात है तो एविएशन के मतलब अलग से वी हैव अ पर्सन हु कैन रियली गाइड यू एविएशन में या पायलट में, एंड एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंजीनियर्स के लिए आपको कैसा करना चाहिए। So one is artificial intelligence, second is machine learning, third is data science, and fourth is cyber security. और बस रिपीट कर लेता हूं आपके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। सो ये काफी बूमिंग है। मतलब हम लोग क्या करने के पहले ये जो चारों चीज के बच्चे लोग क्या करते थे कोर्स करने के, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चा 3rd ईयर में आ गया तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ कोर्स कर लिया, मशीन लर्निंग का कुछ कोर्स कर लिया, डेटा साइंस का कुछ लोगों ने कोर्स कर लिया, एंड या तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया। अभी एडवांटेज क्या आ गया, अब ये चारों चीज ही 3 साल बैठ के पढ़ने वाले हैं। सो आप जो फॉर एग्जाम्पल जो पहले कहने की भाई ठीक है ये भाई ऑर्थोपेडिक है, तो ऑर्थोपेडिक भाई ठीक है, पूरे जहां पे भी हड्डी टूटी भाई ठीक है, वो ही कैन डू द नीडफुल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये हड्डी का डॉक्टर है, बट ये खाली चारों जो बोन है, उंगलियां हैं, उनके डॉक्टर है। तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो वैसे ये चारों ब्रांचेस हो गए, तो एक कंबाइंड एक स्पेसिफिक हो गया, और काफी कुछ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री होगी जो आर्टिफिशियल, चाहे आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें या काफी अलग दूसरे गवर्नमेंट की बात करें, वो काफी मशीन लर्निंग ये सब टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इट विल टेक अ ह्यूज टाइम आप टू मेक यू एक्सप्लेन कि भाई ये फील्ड है क्या। बट आप गूगल करेंगे तो आपको, या इररिस्पेक्टिव हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, आपको थोड़ी बहुत मालूमात इजीली मिल जाएगी। बट ये 4 ब्रांचेस आप लिख के रखिए। इसको अगर आप बच्चे के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सब ब्रांच को भी अपने ऑप्शन में रखिए, आप इसको स्टडी में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, यस वो तो हमेशा कोर ब्रांचेस है और हमेशा इट विल बी देयर स्टिल, ठीक है। ये मोर स्पेसिफिक ब्रांचेस आ गए।
इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज ये भी कर रही हैं जो ऑलरेडी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ब्रांचेस है, तो कंप्यूटर ब्रांचेस में 3rd 4th ईयर में हम लोग कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, तो उसमें एड ऑन माइनर स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। मेजर स्पेशलाइजेशन क्या होगी? कंप्यूटर। या मेजर स्पेशलाइजेशन क्या हो गया? सिविल। मेजर स्पेशलाइजेशन क्या हो गया? मैकेनिकल। तो इसमें आता है, नया आने वाला है माइनर स्पेशलाइजेशन, जिसमें 3rd 4th ईयर में कुछ सिलेक्टेड बच्चे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें वो मैकेनिकल के अंदर एक स्पेशलिटी आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में ये स्पेशलिटी आ जाए, इलेक्ट्रिकल में ये स्पेशलिटी आ जाए। तो ये भी काफी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस काफी वो इम्प्लीमेंट करने वाले विद कमिंग। सो आने वाले जो इयर्स में ट्रस्ट मी काफी कुछ चेंजेस होने वाले, वो स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ प्रोडक्टिव रहेंगे, कुछ नई चीज सीखने मिलेगी जो कि रिक्वायर्ड है आज की तारीख। तो दिस इज व्हाट द स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑल अबाउट। कुछ एक ओवरव्यू देना चाहूंगा आपको एडमिशन के, सिंस वी हैव few 5 to 7 minutes। एडमिशन एक प्रोसेस के बारे में इंजीनियरिंग का कैसा होता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में हमें इंजीनियरिंग के खासकर हमें MSCT देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आप देन यू अप्लाई फॉर द एडमिशंस। लास्ट ईयर एडमिशंस का जो प्रोसेस था मैं जस्ट आपको एक थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा, बट ऑब्वियस कुछ चेंजेस तो होंगे ही होंगे। अब तक ऑफिशियल MHCT के बुकलेट इस साल एडमिशंस की अब तक आउट नहीं हुए, जहां तक मुझे मालूमात है। टू माय बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, हो सकता है आज आई होगी तो पता नहीं, कल तक जो मुझे मालूमात थी अब तक उन्होंने आउट नहीं किया है। जब भी आउट होगी तो आपको अलग AMP या अलग अलग मीडियम से आपको मालूमात तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। बट स्टिल व्हेन यू टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसीजर्स, MHCT का पूरे दारोमदार पे ही आपका पूरा एडमिशन इंजीनियरिंग का होता है। जब हम लोग 12th से डिग्री की बात करें, डिप्लोमा से बात करें तो डिप्लोमा का जो एडमिशन है आपका पूरा 10th के परसेंटेज पे होने वाला है, उसमें आपका कुछ एंट्रेंस आता नहीं है। एंड डिप्लोमा डिग्री आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, जो कि डिप्लोमा के फाइनल ईयर के आपके परसेंटेज के दारोमदार पे है। जब लोग MSCT की हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो MSCT के आपके मार्क्स पे, बट ऑब्वियस 12 का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, बट जो क्राइटेरिया है आपका एडमिशन का वो ये है कि आपको 135 मार्क्स होना चाहिए, 45%, 300 मार्क का आपका जो 12 का होता है, ठीक है। MSCT तो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपको जो भी इसको स्कोर मिलता है। आपके 12th की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो 12th में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 100 मार्क्स का आपका होता है। लास्ट ईयर फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी था, जैसे 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स मैथमेटिक्स। थर्ड वाला जो 100 मार्क्स का जो स्लॉट था उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो आपके सब्जेक्ट, आपको बायोलॉजी ऐड करना है बायोलॉजी ऐड कर, जिसका आपको ज्यादा मार्क्स है, या आपका ITI का कुछ कोर्स रहेगा या कंप्यूटर का कुछ कोर्स रहेगा, वैसा आप शफल कर सकते हैं उसको। बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दो ब्लॉक फिक्स था। थर्ड जो 100 मार्क का ब्लॉक है, आपके जो सब्जेक्ट आपने अपीयर किया जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिले, आप वो उसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें आपको मिनिमम जो मार्क्स आपको चाहिए, जो 300 में से आपको 135 मार्क्स चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आपको इंजीनियरिंग पे आना है तो। ये ओपन कैटेगरी 135 होता है, 134 तक एक्सेप्टेंस आपका आता है, 133 टू माय बेस्ट ऑफ नॉलेज यू वोंट बी एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट आपका था, अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी में आते हो, OBC SC ST, देन इन दैट केस इट इज लाइक 40 परसेंटाइल आता है 300 मार्क्स का, तो तकरीबन 120 मार्क्स एंड मैक्सिमम 119 तक आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है, अगर आपका OBC SC ST कास्ट को छोड़ दो, इन दैट केस। सो ये आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। देन आप यू कम डाउन टू, बिकॉज इससे कुछ साल पहले 50% था, 150 मार्क्स था, तो गवर्नमेंट ने इसको कट डाउन करके 135 किया है, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग एडमिशन टू इंजीनियरिंग और बढ़ जाती है आपके यहाँ पे। बट ऑब्वियस आपके कंपटीशन भी बढ़ जाता है, बिकॉज लोग बढ़ गए तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है आपके लिए। सेकेंड आपका, आप जब MSCT के मार्क्स के हिसाब से जब अप्लाई करते हो, जबकि फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म्स भरने के लिए भी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज आप एक साथ भर सकते हो फॉर्म्स में। तो व्हेनेवर आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप फॉर्म भरें, जो भी आप कॉलेज में जाके भरे फॉर्म, प्लीज पूरी मालूमात लेके सुकून से आप पहले अपनी लिस्ट बना दें। बिना लिस्ट बनाए आप फॉर्म भरने जाइए मत, या आप प्लेज करिए। वी हैव सीन कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई वो जो भी कॉलेज में आके फॉर्म भरते हैं, वहां पे दूसरे के लोगों को देख के वो अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, या स्कूल कॉलेज के नाम सेलेक्ट करते हैं या ब्रांच के नाम सेलेक्ट करते हैं। वो आप प्लीज मत कीजिए, पहले से आपका होमवर्क कीजिए कि मुझे कौन सा कॉलेज और कौन से ब्रांच का प्रेफरेंस देना है। मैं आपको एक छोटे सा आपको उसका फर्क समझा देता हूँ।
अगर फॉर एग्जांपल आपका MHCT में 100 मार्क्स आता है, ठीक है, और मेरा MHCT में भी 100 मार्क्स आता है, इन दैट केस अगर मैंने वही सेम कॉलेज सेम ऑप्शन अगर नंबर 1 पे दिया और आपने वही नंबर 2 पे दिया, तो बट ऑब्वियस जो कंप्यूटर स्कैनिंग होती है, इन दैट केस तो प्रेफरेंस सेम मार्क्स होगा और मैंने उसको हायर प्रेफरेंस दिया तो वो मेरा नंबर लगता है, अगर सीट एक ही रही तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। तो आपका सीक्वेंस क्या है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपका मार्क्स 100 है और आपको पता है कि ये फलाना फलाना कॉलेज है जो कि लास्ट टाइम 140 150 पे क्लोज हुआ है, इन दैट आपको मिलने की चांस प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो, बट स्टिल आप उसको नंबर 1 लिखते हो, तो फिर आप अपने ऑप्शंस और अपने प्रोबेबिलिटी को आप डिक्रीज करते हो। तो whenever you fill up a form, आप जब ऑनलाइन एडमिशन ओपन होगा, चाहे डिप्लोमा का हो चाहे डिग्री का हो, तो प्लीज आप जानकारी लेके उसको फॉर्म फिलअप करें। नहीं, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, AMP एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूछिए, जहाँ पे आपको लोगों से कनेक्ट किया जाएगा एंड एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू आउट उसमें कि फॉर्म भरा कैसे जा सके और सही तरीके से कैसा भरा जाके। ठीक है, आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर आर एजेंट हु हेल्प्स यू इन फिलिंग अप द, बिकॉज फॉर्म गलत फिलअप हुआ आपका तो अगेन फिर आप मैनेजमेंट कोटे में चले जाते हैं। तो वो प्लीज आप चीजें ध्यान रखिए इस पर, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था आपके इंजीनियरिंग के बारे में। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल कि आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, जो भी मॉडरेटर्स क्वेश्चन पुटअप करें, आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त देने के लिए। Thank you very much, sir. That has been a very enlightening session. आपने जो इंजीनियरिंग का जो बेसिक है, राइट फ्रॉम स्टडीइंग टू द करियर, आपने वो पूरा कवर किया. I hope all the students and the parents were benefited by your lecture. अभी जो questions आए हैं, let me go one by one. The first question is, after BTech, what one should do? I think it was asked by Mr. Shahid. Yes, you're right. शायद जरा इनके आंसर सिवाय दो ही लोग दे सकते हैं। नंबर 1 इज सुबहान अल्लाह ताला, नंबर 2 is the person who is doing itself. No one else should dictate it, because शायद the situation is different. Like आज हमारी एक situation टेक्नोलॉजी के अलग है, कुछ एक 4 साल बाद टेक्नोलॉजी की सिचुएशन कुछ अलग रहे। हमें पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अगर इसको कॉर्पोरेट में पटअप करना है तो सिचुएशन देख के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। There were times शायद कि 15 years back की you had to do BTech, you had to do masters, then only it will have some value. You had to do BTech, आपको MBA करे तो ही वैल्यू बने। आज की तारीख में ऐसा है कि आप मास्टर ग्रेजुएशन करें और कुछ एक जो स्पेसिफिक स्किल सेट सीख ले आप 3 से 6 महीने का कोर्स का, एंड यू गेट अ गुड जॉब फॉर इट। सो अल्टीमेटली हमें ये फोकस करना चाहिए कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग हमारे अपने आप को कर्टेल करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील वी हैव टू बी वेरी अडैप्टेबल। वी शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट कि हमें ये करना है वो करना है। अगर हमारे दिमाग में एकेडमिक्स है, सो एकेडमिक्स में ऐसा है शायद कि हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज जो सिस्टम हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें नॉलेज भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए। खाली नॉलेज रख के नहीं चलेगा, डिग्री बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एकेडमिक्स में हमें थोड़ा आगे बढ़ना है तो डिग्री बहुत मायने रखती है। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो कौन सी फील्ड में अप्रोच कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको मतलब आपके खाली स्किल सेट्स है, डिग्री इज द लीस्ट प्रेफरेंस। वो डिग्री रिकॉर्ड में या जॉब में इसलिए डालते ताकि उनका वक्त बचे, ताकि बच्चे फिल्टर होके उनके पास पहुंचे, ताकि उनको कम बच्चों का इंटरव्यू लेके दे कैन सेलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। दैट्स व्हाट आई वांट टू पुट इट अक्रॉस। थैंक यू। Okay, sir. Next question is, can you also talk on startup culture? How to do startups? From where do we start? अबरार, स्टार्टअप हम लोग लाइमलाइट में काफी देखते हैं। लाइक आई एम इटसेल्फ अ स्टार्टअप मेंटर। मैं IIT में हूँ, IIM में हूँ, आई एम इनटू वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज, मोर देन 10 प्लस। बट ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे कहेंगे स्टार्टअप कल्चर से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उनको पढ़ाते पढ़ाते ही क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डालें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट डालें। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ही हमें उनको फोर्स करना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, और प्रोजेक्ट ऐसा बनाइए कि आप बताइए कि प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, चाहे वो आपके कॉलेज में हो, चाहे आपके सोसाइटी में हो, चाहे आपके घर पे हो। ये हैबिट होना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप वर्ड लुक्स वेरी कैची,
But the point is that why startups are built up to solve a problem. So habit culture during graduation itself होना चाहिए कि problem solving ability is nothing but वो एक startup का word दे दिया है. So if I have or you are having or anyone is having a problem solving capacity for it, then definitely for sure startup is one of the best thing for it. और आज की तारीख में in coming years, in last 3.5 years, Abrar, there are various platforms जिसमें startups को काफी प्रमोट किया जा रहा है. और थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊं, there are platforms known as incubators. Incubators एक जगह होती है जहां पे you go and pitch your idea, ठीक है? That are government funded place where they promote startups, they promote companies, they promote youngsters. So they invite people. You can come to their place. They will help you with the funding. They will help you with the place. They will help you in making networking. They will help you with the mentors. So ये चारों मेजर चीज पे वो आपको एक ही जगह मिल जाती है जिसको हम लोग इनक्यूबेटर्स कहते हैं. So irrespective आपके कॉलेज में हो नहीं हो, आप बाहर काफी इनक्यूबेटर्स हैं. If your idea is good, if it is making a difference, things will float away. Thank you. Thank you, sir. So next is like diploma to degree. Only a few colleges have lateral entry. तो admissions जैसे आपने कहा कि only 12 seats ही available होते हैं. So what is the benefit? सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा जिसका भी क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इट अप. सबसे बड़ा बेनिफिट कैसा है, आप ऑलरेडी 10th के बाद बच्चों को जंप कर रहे थे इंजीनियरिंग में. फर्स्ट सेमेस्टर टफ होता है, मैं आपको यकीनन कहता हूँ टफ होगा, बिकॉज बट ऑब्वियसली 10th का जो करिकुलम है और फिर इंजीनियरिंग का करिकुलम जो उनको साल भर करते हो 6 महीने में आते, थोड़ा तकलीफ तो आएगी, बट वो तकलीफ उनको आने वाले 5.5 साल में काफी आसान हो जाती चीज है. अगर विद विजन इज वेरी क्लियर कि इंजीनियरिंग करना है, तो व्हाई नॉट कि जो उनके 2 साल भी 11th 12th के वो भी उनको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं पढ़ाऊं. मुझे पता है जब आगे एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला है उसका एक बेसिक्स अगर अभी क्लियर होता है, जो आगे 4 साल व्हाट ही विल बी डूइंग इट, उसका कंसेप्ट फ्लो और स्ट्रेटजीज और द वे ही विल बी वर्किंग इट अभी से वो रेडी हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं डिप्लोमा प्रेफर करूं. और डिप्लोमा में जितना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो वो 11th 12th उसको मैच ही नहीं कर सकता है एट एनी पॉइंट. एंड इफ यू हैव read the new education policy, the NEP, it is very clearly said outcome based education, OBE. So outcome तभी आपको दिखेगा जब when he is making a project. अभी वो बुकेश का जमाना काफी फेड आउट हो रहा है, हमें उसको बच्चे को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाना होगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंपैरेटिवली डिप्लोमा में बेनिफिट बहुत ज्यादा है. खाली एक डर क्या होता है, डर का मतलब यह है कि उनको सीट्स कम है. सीट्स कम है इसका मतलब है कि एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. एडमिशन मिलता है, 100% मिलेगा, बट आपकी चॉइस ए होगा, आपको कुछ और मिल रहा है, या आपकी चॉइस बी होगा, आपको ए मिल रहा है, या सी होगा तो आपको डी मिल रहा है, ई होगा तो आपको एफ मिल रहा है, या जी होगा तो आपको एच मिल रहा है. दैट इज समथिंग. तो अब पॉइंट ये है कि अगर इफ ही इज गुड, अगर उन्हें पढ़ाई अच्छी की, परसेंटेज अच्छा ला रहा है, तो ये भी हर्डल निकल जाता है. बिकॉज 12th में आपके पास फनल एडमिशन का ऐसा है, वाइड है. डिप्लोमा में आपका फनल आप निकलते तो आपको 60 बच्चे निकलते, आपका बच्चा नैरो होता है ना, हर ब्रांच में आपको 12-12 सीट मिलती है, तो कॉम्पिटिटिवनेस होता है. तो अगेन वो ऐसा है कि the child has to really study hard to get a decent good college. Thank you. Thank you, sir. The next question is they want to talk you about the software engineering. Sorry, can you come again, ma'am? They want more light on software engineering. You talk about software engineering, आप कंप्यूटर बोलिए, IT बोलिए, everything is same. Everything is same. When a child enters into engineering, when he start doing various platform, for example, हम जो सॉफ्टवेयर की जब बात करें या कंप्यूटर की बात करें, तो अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग हिंदी बात करें, या उर्दू है, या मराठी, या इंग्लिश है, राइट. जैसा सॉफ्टवेयर की कोडिंग के लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस है, या अलग अलग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, या पाइथन बोले, या CSS बोले, या बूटस्ट्रैप बोले, या हडूप बोले. देयर आर वेरियस जो एक सब टेक्निकल वर्ड्स है. आई डोंट नो हाउ फैमिलियर यू आर विद टेक्निकल स्टफ.
बट जस्ट आपको एक ब्रीफ देने के लिए। तो आप ये कोई भी ब्रांच करें, अल्टीमेटली इट इज अप टू अ स्टूडेंट वो कौन सा प्लेटफॉर्म उनको क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेबसाइट देखते हैं, आप वेबसाइट अगर देखते हैं तो वेबसाइट अगर बनती है तो वेबसाइट बनने के लिए भी अलग अलग टीम्स होती है। अगर मैं जरा डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, बट आपको एक सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, तो वेबसाइट अगर बनाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर बना सकता है, आईटी इंजीनियर बना सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बना सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी बना सकता है, बट अब स्किल सेट होना चाहिए उनको। जब वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट में बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए दो पार्ट है। एक व्हाट यू सी इन द फ्रंट, द वे यू इफ यू क्लिकिंग समथिंग तो कुछ पॉपअप ओपन होता है, द सेकंड सब सेक्शन आते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो वो कोई और इंजीनियर बनाता है जिसको आर्टिस्टिक वे है, वो पता है कि कैसे डिजाइन करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक होता है बैकएंड इंजीनियर जो खाली सॉफ्टवेयर कोड करता है। तो एक वेबसाइट में जो आपको लुक दिख रहा है उसमें भी आपके दो इंजीनियर्स हैं। द स्कोप इज ट्रेमेंडस, बट द पॉइंट इज दैट द पर्सन हैव टू बी क्रिएटिव। अगर वो लेमैन वे में वर्क करें, he'll get a job, he'll be getting paid for it, but if he is mapping his future for coming 5 years or 10 years, so to reaching to a top level would be difficult, because if he wants to be on a top level, he have to be creative, he have to be ready to accept challenges. He cannot listen and make it. He have to realize what is the requirement and then make it. Thank you. Thank you, sir. What is the scope of bioengineering? That's what I said you. Irrespective it is bio, medical, biotechnology, if it is civil, mechanical, trust me, you have scope for every field. Trust me. The only concern is that the atmosphere of the college and the student, it is really important. Every field has work, every field. Now you tell me, look at the corona phase. We are hearing about oxygen concentrator, right? You tell me what would be the scope for biomedical engineer at this moment? It is tremendous. It is tremendous. What is the scope for biotechnology at this moment? It is tremendous. So the market is very fluctuating. You have to be very, very crucial with your skill set. Simple as that. Thank you. Thank you, sir. Next question is, what kind of person makes a good civil engineer? What kind of person makes a good civil engineer? Make sure that whatever you earn is halal. Very rightly said, sir. And what about marine engineering? What is it actually about? Okay. So there are two ways for going with marine engineering. Abdul, Subhan, Muhammad, Ismail Sheikh have put up that question. Thank you so much for putting up that question. Number one way is that after 12th, you go to marine engineering directly straight away. So you have two colleges in Mumbai itself, one, and in fact in Navi Mumbai. One is in Belapur, one is in Panvel itself, BP Marine. So after 12th, you have a graduation course for marine. Second option is that you go for a mechanical engineer. Okay, you complete a mechanical engineer, then you go for a course for a year, 1.5 year. So the year is one of the courses for 12 months, one of the courses for 18 months. So that one of the famous colleges there in Lonavala. So again, that is very famous for marine engineering. So that is an add-on course, a specialized course. So once you do a mechanical engineer, so for a more specialized course, you can take an admission for 12 to 18 months of course over there. The admission is not so easy. They have the entrance examination and everything because admission is tough, but the scope is really huge. So these are the two different ways if you want to enter into marine engineering. Okay, thank you. Next question is, can we pursue IT engineer after taking commerce stream? The market only needs your skill set. Either you are from arts background, either you are from a commerce background. If a engineer can do an administrative work, why not a commerce person do an engineer's work? So ultimately it is your skill set, your efforts, that's it. The corporate is only concerned
what value you bring to the table. Simple as that. Even if in software engineer, if you don't bring a good value to it, and if a commerce background person who was really keen, who has really worked really hard in his IT skills, and he can bring a good value to the table for the company, simple as that, he'll be hired. Very clear and straightforward. Thank you. Can we do IIT after diploma? No. IIT doesn't have a lateral entry. So if you're targeting for IIT, there is only one way. We have to go with JEE. For aerospace engineering, so what is it that we actually have to do, to get into the admission? For aerospace, I'm really extremely sorry. I don't have that kind of expertise, but we do have 2 to 3 people in AMP who are an aerospace engineer. Our team can really help you in connecting into that. Career opportunities in CS branch? Either it can be CS, computer science, either it can be IT, either it can be mechanical, civil, any branch. एक थंब रूल बना दो आप, कॉलेज के सीखने के अलावा मुझे एक्स्ट्रा स्किल्स खुद से सीखनी पड़ेगी. सिंपल एज दैट. कॉलेज का जो भी सिलेबस रहेगा आपको एड ऑन स्किल लेनी ही पड़ेगी. However good the colleges, however bad the colleges, however moderate the colleges, कॉलेज के अलावा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. वक्त के अलावा आपको जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है आपको मेहनत करनी पड़ेगी. फिर चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सिविल हो, स्कोप डेफिनेटली है. आपको कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री आपको इमीडिएटली अडॉप्ट करेगी. क्यों नहीं करेगी? दे नीड पीपल. थैंक यू. I think that holds for each and every career. Second is like how hard civil engineering is. How hard civil engineering is? It is that hard कि आप the way you think, your approach will make it difficult. Either your approach will make it easy, either your approach will make you a good civil engineer. Simple as that. It is your approach. So if you What about the? Yeah. Go ahead, sir. So if you really feel, yes, I want to go for a driving, I want to learn a car. My dad bought a car for it. I want to learn. Simple as that. So that driving is difficult. Because if you don't have that kind of skills, you can kill someone. But still, you have an ego to learn it, right? It is difficult. Similar as that. So irrespective of civil, mechanical, computer science, electronics, every branch is equal when you talk about difficulties. Trust me. First year is common for every student. आप फर्स्ट ईयर कोई भी ब्रांच में एडमिशन लीजिए, सबको फर्स्ट ईयर सेम रहता है इंजीनियरिंग का. सेकेंड ईयर से आपके ब्रांचेस अलग होते हैं, तो आपके सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आना चालू होते हैं. फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी चेंजेस नहीं आता. एंड वो बहुत सिंपल चीज है. सब्जेक्ट को डिफिकल्ट और आसान टीचर ही बनाता है. तो अगर कॉलेज अच्छा रहे तो टीचर अच्छे रहेंगे. टीचर अच्छे रहेंगे, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी वो आसान बना देगा. So choose it properly where you'll be spending your 4 years. Thank you. What are the benefits of MTech from IIT? Two things. Number one, when you do from IITs anywhere, आप पे एक टैग लग जाता है कि this child is at a different cadre. पहले आपका आईआईटी में आने के बाद जो भी परसेंटेज आया, लाखों बच्चों में से अगर आपने वो मुकाम ले लिया है, तो बट ऑब्वियस आपका स्टेट अब एक टैग अलग आ जाता है कि भाई ये अलग टैगर है. तो whenever you go for an interview, तो वो आप बाकी लोग को इमीडिएटली बीट कर लेते हो. सेकंड, इंसान जितनी अच्छी जगह पे पढ़ता है या जितनी अच्छी जगह पे काम करता है, उसका माहौल और नेटवर्क वैसा बनता है जो कि आगे उसको लाइफ में बहुत काम आता है. सो व्हेन यू वर्क एट आईआईटीज, तो आईआईटी में इतनी अच्छी कंपनीज अपने एज अ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स आती हैं, तो वहां पे जॉब मिलना और बेहतरीन जॉब मिलना इज नॉट डिफिकल्ट. और सेकंड कैसा है
वहां पे जो लेवल ऑफ जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो प्रोजेक्ट वो काफी हाई आते हैं। तो उसमें आपको बोलते ना, आपको काफी जो तजुर्बा जो मिलता है, जो एज ए कॉर्पोरेट को जो तजुर्बा भी नहीं मिल पाता कुछ कुछ, वो आपको आईआईटी में होके मिल जाता है। सो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। सो व्हेन यू पुट डाउन टू योर रिज्यूम कि आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट का आप एक पार्ट थे, तो आप जब कोई कॉर्पोरेट लेवल में इंडस्ट्री में आता तो ही अंडरस्टैंड्स कि यस, ही नोस कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जा सकता है। अगर इन्होंने ये संभाला है तो ये तो संभाल ही सकते हैं ना। So when you do no, when you don't do from IIT, when you do for a very normal college, जो तो you deal with this difficulty. So ये difficulty face करने के लिए तो फिर सामने वाला सोचेगा ही ना. So when you already face this difficulty, so ये difficulty face करने के लिए the selection is very fast for you. Simple as that. Thank you. What if we study BTech in abroad? That's totally your case for it. I'll just put at one point. The only concern is that if you're planning for to study in abroad, if you go without a scholarship, then after a year, when you put down to your resume, so you have done your graduation, you have done your masters, you have done your research without a scholarship, that gives a negative point. So whenever you are planning for an abroad, so whenever you're planning for any course, either it could be a graduation, either it could be a masters, make sure you go on some part of your scholarship. Because वो एक credential आपके नाम पे attach होता है, yes, he had this kind of scholarships. Irrespective आपकी family is ready or not to fund for your education, आप scholarship के लिए try करके थोड़ा part of scholarship आप लीजिए. But obviously अगर जितना मिले उतना बेहतर है. But without scholarship मत जाइए. That's not a good point. Thank you. To do artificial intelligence, which branch of engineering should we choose after 12th? Sorry, can you come again, ma'am? For artificial intelligence, which branch of engineering to choose? My dear friend, nowadays in many of the colleges, you will find आपको एक course ही मिल जाएगा, diploma in artificial intelligence. You'll find a course, BE, graduation artificial intelligence. So you don't need to go for any course. Simple as that. आपको directly AI का course मिल रहा है. And still if you feel कि नहीं मुझे जो कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां पे AI नहीं है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वहां पे मेरे पास कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो मैं दोनों में से कौन सा लूं? आप दोनों भी ले सकते हैं, कोई भी लीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जो फिट होता है आप लीजिए, बिकॉज इन बोथ द केसेस आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस मिलना ही मिलना है. थैंक यू. Is there any scholarship for general category student if he or she is able to clear GATE? For a GATE after 12th, after graduation, you get a stipend for that. The stipend is, if I'm not wrong, it is very close to 12,000 rupees per month. Yes, there is a scholarship, and that is for 2 years. Okay, sir. And what if we do civil engineering in abroad? Irrespective of any engineering, whatever you do, whatever you're planning for abroad, make sure, because I won't comment on which college and what is the criteria for it, because I can only comment once you put down the list. Okay, this is a list I'm targeting for it. My only concern is that you don't go without a scholarship. If you're planning for abroad, go only if you have availed a scholarship. Going without a scholarship won't add a value to it. This is a long message. Let me read out. I'm pursuing diploma in computer engineering, and currently I'm in the last year of my engineering. I have scored 93.78% in my 5th semester exam. So what college should I prefer for degree admission for BE in computer engineering? I'm currently in Mira Road. Which colleges would be near and would provide the best placement in multinational companies with decent package? And I've completed my schooling from ICSE school. So would there be any special preferences for me? Okay, thank you so much. So when you talk about with this profile,
अभी आज की तारीख में तकलीफ ये आ गई बच्चा, इफ दिस वुड, अगर ये नॉन कोविड पीरियड होता तो योर परसेंटेज वुड बी रियली वुड बी वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट, बट सिंस ये कोविड पीरियड है ना, तो यहाँ पे सबके एग्जामिनेशन सबके ऑनलाइन हो गए। सो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जिसको 80+ % मिला है, या 90+ % मिला है, या 85% मिला है। सो एडमिशन दिस टाइम वुड बी एट अ वेरी वेरी हायर कट ऑफ, नंबर 1, वो आप ध्यान दीजिए। सो इवन आफ्टर स्कोरिंग 93, गेटिंग अ गुड कॉलेज वुड बी डिफिकल्ट। ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए, नंबर 1। नंबर 2, मेक श्योर विच एवर कॉलेज आप बैचलर में दे रहे हो, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया पुट अप कर लेता हूँ विच कैन रियली हेल्प यू, ठीक है, इन सेलेक्टिंग फॉर इट। सो इनडायरेक्टली that will, if that criteria is satisfied, so indirectly it will give you a indication that that is good. Make sure that college is NAAC accredited, NACC. Second, make sure that branch, whichever college आप जो भी टारगेट कर रहे हैं, वो ब्रांच आपका NBA accredited है, होना चाहिए। इफ नॉट तो एटलीस्ट वो NBA की प्रोसेस में है क्या, वो इंफॉर्मेशन। सो NAAC और NBA दोनों accreditation प्रोसेस है। If the college has gone through it or the college is on the way for this process, that means the college is very very sincere. So NAAC में क्राइटेरिया होते हैं, the college आपका A+ या A++, A grade and so on and so forth. NBA is accreditation for the department level. NBA कॉलेज के लिए नहीं होता है। NBA accreditation होता है आपके डिपार्टमेंट के लिए, तो आपका कंप्यूटर डिपार्टमेंट ये कॉलेज का NBA accredited है कि नहीं। If that is, that means accreditation proves कि yes they are doing it very good, because accreditation में हर एक पॉइंट आ जाता है बच्चा। It includes the lab quality, the teachers, the faculties, what quality of faculty are there, what quality of research is being happening, what is the quality of placement, if the department is NBA accredited. So you can shortlist it, up to you. So there are 2 good colleges in your vicinity, which is what we have got a very good review about placement. So one is Thakur, which is in Kandivali, and one is in Borivali, which is St. Francis. So these are very good, but still just check it if they're NBA NAAC accredited or not. And still their list goes on and on. In Mira Road, you have Alaz Tiwari as well. Thank you so much for putting up a question. What are the career opportunities in CS branch? In computer science, when you talk about career opportunities, there are different categories where you can develop your skill sets. Enormous, irrespective of the CS. Again, my answer would be same: CS, mechanical, IT, computers, electrical. आप जिससे भी बात सुन रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो किसी को ऑब्जर्व करके अपनी ओपिनियन बना रहा है। जो भी कहता है भाई ठीक है ये ब्रांच सही नहीं चल रहा है, मतलब इसका मतलब उन्होंने ये ब्रांच के की बच्चे को देखा होगा जो कि हु इज नॉट डूइंग इट गुड, और उन्होंने ओपिनियन कर दिया कि ये ब्रांच इज नॉट डूइंग गुड। इनको ये नहीं पता रहेगा कि भाई ठीक है वो बच्चे ने उस टाइम पे अपने एफर्ट्स कितने पुट अप किया है, तो वो तो अकाउंटेबल ही नहीं है। सो प्लीज अब वो समवन हु इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज, उनकी ओपिनियन लेके आप अपनी ओपिनियन मत बनाइए। सीएस में ये जितने भी ब्रांचेस मैंने कहा आपको, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग ये आपके सीएस के पार्ट्स में निकल जाता है स्ट्रेट अवे। सीएस में इनफैक्ट एक बूमिंग टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वन इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यू कैन आल्सो नोट इट डाउन। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर इट, सो यू कैन हैव अ लुक फॉर ऑल दिस टेक्नोलॉजी व्हिच इज, ये कमिंग डिकेड में इट विल रियली एवैम्प एट अ डिफरेंट स्केल। So enormous opportunities है। So once you start scaling with it, आप हर चीज थोड़ी थोड़ी करने के बाद you will come to know कि मुझे इंटरेस्ट ज्यादा किस में, AI में आ रहा है, ML में आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है, नेटवर्किंग में आ रहा है, किस में आ रहा है, and then you can stick to one thing and then you can scale it up. हर एक के वर्कशॉप्स बैठा करो कॉलेज में। वर्कशॉप बैठने का फायदा क्या होता है, बिकॉज यू विल कम टू नो कि एक ओवरव्यू क्या है,
ये टेक्नोलॉजी का, कि मुझे कितना सूट कर रहा है, मुझे कितना ये इंटरेस्ट दिला रहा है. So that is the only way you can take a decision. गूगल पे रीड करके डोंट कम टू अ कंक्लूजन. हैंड्स ऑन करो, 4 5 6 दिन जाएंगे, 8 दिन जाएंगे, दैट्स इट. देन यू विल इटसेल्फ कम टू अ कंक्लूजन. थैंक यू. Can we please know more about JEE NTA score? मैम JEE I can give a comment on it. So if अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है JEE के थ्रू, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु हैज ओनली गिवन JEE, इन्होंने 12th अगर बाहर से किया और उनके मॉम डैड डोमिसाइल है महाराष्ट्र के, ठीक है, सो इन दैट केस JEE से आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, बट ऑब्वियस नॉन नेगेटिव स्कोर चाहिए आपको, यू कैन गेट अ एडमिशन इन इंजीनियरिंग. बट द पॉइंट क्या है यहाँ पे, आपको JEE से जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो आपको खाली 20% सीट का यू कैन फाइट फॉर इट. तो JEE का जो कोटा होता है वो 20% सीट का ही होता है. सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉलेज में 100 सीट है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं मैं, सो आप 20 सीट्स में ही आप एलिजिबल हो. 80 सीट्स वो MSCT के बच्चों के लिए ब्लॉक है, और जो JEE के लिए सीट बच जाती है वो भी MSCT के बच्चों को ट्रांसफर करी जाती है. MSCT की सीट अगर बच जाए वो JEE को ट्रांसफर नहीं होती. तो ये मेजर डिफरेंस आ जाता है उसमें. और मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 टाइप के कॉलेज होते हैं, एक होता है माइनॉरिटी कॉलेज, एक होता है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज. जब हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, अंजुमन इस्लाम का साबर सिद्दीक, अंजुमन इस्लाम का कालसे का टेक्निकल कैंपस, देन वी हैव रिजवी कॉलेज, एंड अगेन बोईसर में वी हैव अनदर कॉलेज. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो अगर 100 सीट्स है एग्जाम्पल, तो 51 सीट्स आपकी माइनॉरिटी के लिए रिजर्व हो गई है. तो 49 सीट्स ही खाली ओपन कैटेगरी में एलिजिबल है. अब वो 49 में से फिर आपका 20% निकलेगा जिसमें JEE के लिए एलिजिबल है. तो अगेन अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो उसमें JEE का जो काउंट है वो और कम हो जाएगा. सो इफ यू आर आपको JEE से एडमिशन लेना है तो आप ध्यान रखना व्हाइल फिलिंग अप अ फॉर्म, आप नॉन माइनॉरिटी कॉलेज को ऑप्शन में पहले रखना, बिकॉज गेटिंग एडमिशन ओवर देयर द सीट काउंट इज लिटिल हायर. ये कुछ टेक्निकलिटी चीज है. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इट, कि कभी भी आप फॉर्म भरे तो प्लीज टेक अ हेल्प ऑफ AMP प्लेटफॉर्म. इट विल रियली हेल्प यू. इट विल हेल्प यू इन कनेक्टिंग विद वेरियस पीपल, जहाँ पे आपको लोग सपोर्ट कर सके कि फॉर्म सही से भरा जाए. थैंक यू. Can we do MTech and MBA together? No, it is not preferable. Okay. I want to do post-graduation in artificial intelligence and machine learning. So which engineering branch I should do for graduation? Either you can do electronics, either you can be from electronics and telecommunication, either it can be from CS, either it can be from IT, all the 4 branches. How to get in product-based company? Sorry? How to get in product-based company? Okay. That's your skill set. Simple as that. You develop your skill set, then you get for it. Every firm have a different requirement for it. So look at the requirement, develop the skill set, then you go for the interview and mark it out. Is coding best for the next 30 years? Sorry? Is coding best for the next 30 years? Coding it was a very old concept. It is like it will be. Like, why children are bound to make coding? It is not about they have to develop an app. That the advertisement is different. Coding and mathematics really helps in like taking up your mind, helping you in the creative stuff, helping you in critical thinking. So, but obviously it will never fade away. It will never, because coding is giving you a challenge. Show me this output. So anything which is giving you a challenge in education, it will never fade away. Mathematics, it is giving you a challenge. It will never fade away. Thank you. If we want to prepare for civil service, then any special branch in engineering? No. Irrespective whichever branch you go for it, if you are really planning for it, please mark your subjects, because there are very few
IAS and IPS are there who have chosen the 4 subjects for UPSC because what we have seen it and what we have met them and what we have faced it, those are really difficult subjects. Like choosing your 4 subjects for your means examination UPSC is difficult, rather than selecting geography, history, political science, and so on and so forth. So that is something you have to plan to your best of your choices and your interest. My son is studying in 11th standard in Muscat. If he gives JEE from here, does NRI quota will be applied for college admission? If the parents are having domicile, अगर उनके माँ बाप के पास अगर domicile है, that means तहसीलदार से जो बनता है, अगर वो बना के रख देते हैं, so वो NRI कोटे में नहीं आते हैं, वो एक Part B कैटेगरी होती है जब MSCT फॉर्म भरा जाता है, so they will come under that category and वो normal जो non NRI कोटे में ही उनका एडमिशन हो जाएगा. So वो documentation work please पहले से करा के रखिए, because getting into NRI quota the fees is extremely high. मतलब a same college, the same classroom, same teacher, if a student is getting a non-NRI fees is like something roughly 1 lakh rupees a year. Okay, the same thing for NRI fees would be more than 2x or 3x. It would be 2 lakh or 3 lakh rupees. So it doesn't make sense of investing so much of money for the same seat. Can we do cyber security after diploma? Yes, you can. In fact, while doing a diploma, you can do it. When we talk about diploma, does it mean ITI? No, ITI is a little lower level. ITI have a little less specialization compared to a diploma. So when you talk about diploma is something a little higher level than compared to ITI. ITI, people who are doing it ITI, so they go for a level C kind of job. Okay, so diploma a level B, a degree level A. फकिया थोड़ा क्वेश्चंस है ना, ये कर लो, चूज कर है ना, you can go with them because time is getting prolonged. It's going to be 5:30. Yes, Asma ma'am, I'm trying to, Yes. like, yeah, I'm trying to. Yes. Take up only the important questions. Yeah, sure. Is there any scholarship for 12th completed whose father is dead? Number 1 is आपके पास minority scholarship तो आपके पास आ ही जाती है. So straight away आपको every year आपको 25,000 रुपए आपको मिल जाते हैं. Second, अगर आपके पास OBC हो तो आपके पास 50% फीस आपकी गवर्नमेंट पे करती है, 50% फीस पे करनी पड़ती है कॉलेज की. उससे भी बेहतर एक स्कीम है, ये काफी कम लोग को पता है, काफी कम लोग अप्लाई करते हैं. एक स्कीम है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड, EWS स्कीम बोलते हैं. हर ब्रांच में 3 सीट्स इसके लिए होती है. एवरी ब्रांच, एवरी कॉलेज, एवरी ब्रांच. ठीक है, EWS सीट कैटेगरी होती है. इसमें अगर आपके मार्क्स अगर अच्छे मार्क्स हो, अब भले आप ओपन कैटेगरी के बच्चों, आपके OBC नहीं हो, SC नहीं हो, ST नहीं हो, चलेगा. इसमें आपकी फैमिली इनकम इज लेस देन 2 लाख रुपीस, तो आप वो सीट के लिए ऑनलाइन फॉर्म में एप्लीकेशन भर सकते हो. अगर आपका नंबर वहां पे लग जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी 100% फीस गवर्नमेंट पे करती है. आपको कॉलेज की खाली डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि सालाना तकरीबन 5 से 8,000 रुपया, 10,000 रुपया आते हैं. हर कॉलेज से वेरी होता रहता है. तो पूरी कॉलेज की फीस आपकी गवर्नमेंट पे करती है, EWS की. तो आप अगर थोड़े अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप वो कैटेगरी में ला सकते हैं. और कोई भी कॉलेज है, चाहे वो कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए हो, चाहे वो कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए हो या 50,000 रुपए हो, पूरी फीस गवर्नमेंट पे करती है. थैंक यू. Is VIT Vellore College good for BTech? It is very good. How to continuously update with new technologies in any platform? Go to the in Google you have a settings. Okay, so when you go to a Google, you have a setting where you can select the technology which you want an upgrade. Okay, so for example, it could be artificial intelligence, cyber security, machine learning. So you can select all the 3 criteria and you can keep a mailer update. So anything which is being changed, like any update with respect to all these 3 technologies, तो आपको वो हमेशा continuously email put up होगा गूगल से. ये गूगल में सेटिंग्स है. So आपको पता नहीं कैसे करना है, यूट्यूब पे जाके कर सकते हैं, ताकि आपको
कंटिन्यूसली अपडेट मिलेगा, न्यूज अपडेट्स। थैंक यू। So, yeah, the next question is, which college is better, Thakur or Sabu Siddiqui? Very difficult to answer, but something which is very close to me is Sabu Siddiqui. So I would be simple as that. The reason is that number one, that is a minority college. So number two, if you follow Islam, so for you get an atmosphere कि यहाँ पे बोलते ना दीन दुनिया दोनों साथ में हो जाती हैं. Third thing, that is a very old college. So वहाँ पे जो crowd, since the cutoff is very high, so वहाँ पे जो काफी toppers students वहाँ पे काफी ज़्यादा आते हैं. So the atmosphere जो वहाँ पे रहेगा, तो but obviously you'll get it very good, and that is a very old college. And fourth thing, साबु सिद्दीकी के इतने अच्छे alumni है जो कि US, Canada, states, everywhere round the clock in the world are at a very good position. So वहाँ पे alumni connect काफी अच्छा है साबु सिद्दीकी का. So जहाँ पे alumni connect अच्छा हो तो वहाँ पे companies को आने में difficulty नहीं होती है, तो placement would be very good. So my answer would be Sabu Siddiqui. Okay, sir. So this question has been repeatedly been posted. So can we do the 4 courses that you said about, like after diploma or after degree? That you can do anytime. So that we have both the options. Those courses are there in diploma as well as in degree. So there are various colleges who have started those courses in diploma as well as in degree. So no issues at all. Thank you very much, sir. It has been a very enlightening session. There have been like lots of questions, but due to time constraint, I'm sorry we could not take up all the questions. You guys can please connect with the Career Council desk, which the link has been posted in the chat box, so that it would be, convenient for you. And I'm sure that all the students and the parents have benefited from this session. With this, we would like to conclude today's session. Thank you, everyone. Our next session is on 10th June, and the topic is Career in Commerce and Finance. I'm sure it is going to be as good as today's session. And Awab sir, thanks a lot. You have devoted so much time and answered all the questions very patiently, even though they kept repeating. Thanks a lot very much, sir. I mean, Jazakallah khair.